Good afternoon to everyone. Today we are going to discuss on thin layer chromatography. First, we will discuss about what is chromatography. Chromatography is a technique for separation of mixtures of compound into individual components by using stationary or mobile phase. मीन्स क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें आप डिफरेंट जो मिक्सर्स होते हैं कंपाउंड्स के उनको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेशनरी एंड मोबाइल बेस। देन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, there are different types of chromatography techniques is there based on first is based on nature of stationary and mobile phase. In this there are some example: gas liquid chromatography first, then gas liquid chromatography, solid liquid chromatography, and liquid chromatography. These are the different types that are based on nature of stationary and mobile phase. Then second one is based on principle of separation. Okay. The principle of separation can be either adsorption or partition. Okay. In adsorption chromatography, the examples are thin layer chromatography, HPLC, column chromatography, and the next one is partition chromatography. In partition chromatography, examples are paper chromatography and column partition chromatography. Third one is based on modes of chromatography. Okay, in modes of chromatography, there is two types of modes. First is normal phase chromatography. In normal phase chromatography, the stationary phase is polar in nature and mobile phase is non-polar in nature. Actually, this type of normal phase chromatography is not widely used in pharmacy. Second one is reverse phase chromatography. This is the most widely used in pharmaceutical analysis. In this technique, the stationary phase is non-polar in nature and mobile phase is polar in nature. There are some other types of chromatography is also there, like ion exchange chromatography. In ion exchange chromatography, an ion exchange resin is used. In this technique, the reversible exchange of ion takes place between similar charged ions. If you want to separate cations, you can use cation exchange resin, and if you want to separate anions, you can use anion exchange resins. Next one is chiral chromatography. In this type of chromatography, optical isomers, okay, optical isomers means LIGO and dextroforms, can be separated by using chiral stationary phase. The examples for chiral stationary phase is cellulose and cyclodextrins. Next type of chromatography is gel permeation chromatography. In this technique, different types of gels are used to separate the components of mixture अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिफरेंट जेल का यूज करके हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, इन दिस टेक्निक द सॉल्वेंट यूज इज एक्वस और नॉन एक्वस टाइप। आप जो इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं वो एक्वस या नॉन एक्वस दोनों टाइप के हो सकते हैं। द डिफरेंट जेल्स यूज्ड आर लाइक पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट जेल, डेक्स्ट्रॉन्स, एग्रोस जेल्स और पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट जेल्स के जो इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टीएलसी मींस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है वो आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के लिए मेनली यूज होती है। इट इज आल्सो यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये जो डिफरेंट मिक्सर्स होते हैं उसमें से सिंगल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज भी होती है। नेक्स्ट उसके बाद में एनालाइजिंग फ्रैक्शंस कलेक्टेड ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के टाइम पे जो फ्रैक्शंस कलेक्ट होते हैं उनको एनालाइज करने में भी इसका यूज होता है। और लास्ट वन, इट इज आल्सो यूजफुल इन
एनालाइजिंग द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्योरिटी को एनालाइज करने के लिए भी इसका यूज होता है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीएलसी, ठीक है, जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एंड दिस इज सिंपल, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन टीएलसी इज मेनली एडजॉर्प्शन, ठीक है। व्हेन वन और मोर कंपाउंड्स आर स्पॉटेड ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट्स, द कंपाउंड्स विथ ग्रेटर एफिनिटी, ठीक है, जिस कंपाउंड की एफिनिटी स्टेशनरी फेस के लिए ज्यादा रहेगी वो स्लो मूव करेगा, और जिस कंपाउंड की एफिनिटी स्टेशनरी फेस के लिए लेस रहेगी वो फास्ट मूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि दो कंपाउंड जो रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज डन बाय कैलकुलेटिंग द आरएफ वैल्यू ऑफ ईच कंपाउंड। जो भी आपके कंपोनेंट सेपरेट होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन आप आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करके उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ टीएलसी, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसके कुछ एडवांटेजेस है अगर हम कंपेयर करें तो जो अदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती है उनके कंपैरिजन में। तो कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दूंगा एडवांटेज के, फर्स्ट है कि ये जो मेथड होती है वो सिंपल होती है एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज आल्सो लो। नेक्स्ट है दिस इज अ रैपिड टेक्निक एंड नॉट टाइम कंज्यूमिंग लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो टेक्निक होती है बहुत रैपिडली होती है और इसमें टाइम कुछ ज्यादा नहीं लगता। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ एमजी ऑफ सब्सटेंस, तो माइक्रोग्राम ऑफ सब्सटेंस को भी आप इसमें सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनी टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी एनालाइज्ड, इसमें आप किसी भी टाइप के कंपाउंड को एनालाइज कर सकते हैं। देन इफिशियंसी ऑफ सेपरेशन, इसकी जो इफिशियंसी होती है सेपरेशन की बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज इसमें यूज होते हैं जो कि इफिशियंसी को सेपरेशन की इफिशियंसी है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिटेक्शन इज इजी, इसमें जो डिटेक्शन होता है वो इजी होता है इसमें, और आप कोरोसिव स्प्रे रिएजेंट को यूज करते हैं विदाउट डैमेजिंग द प्लेट्स, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और इसके एडवांटेज है, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें जो सॉल्वेंट्स होता है नीड्स लेस सॉल्वेंट, स्टेशनरी फेस एंड टाइम, तो ये कुछ एडवांटेज है टीएलसी के। नेक्स्ट उसके बाद में है प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेगी, तो उसकी अगर हम पहले बात करें तो सबसे फर्स्ट इसमें है स्टेशनरी फेस, ठीक है। तो देयर आर सेवरल एडसॉर्बेंट, देयर आर एंड सेवरल एडसॉर्बेंट और स्टेशनरी फेस व्हिच कैन बी यूज्ड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देयर आर सम examples like silica gel G, silica gel H, silica gel GF, alumina, cellulose powder, polyamide powder. These are the some examples and that can be used as a stationary phase in thin layer chromatography. The next requirement is glass plate. Glass plates of different dimension. Okay, like 20 into 20 centimeter. This is called full plate, or 20 into 10 centimeter. This is a half plate, or otherwise 20 into 5 centimeter. This is called as quarter plate. Can be used as a glass plate. This dimension is mainly used because the commercial available TLC plater which is 20 centimeter. Otherwise, you can also use microscopic slides, and these are also used as a glass plate. The next, preparation and activation of TLC plate. And जैसे कि आपने TLC प्लेट प्रिपेयर करेंगे उसके बाद में स्लरी को आपको प्रिपेयर करना है, तो द स्लरी विच इज अ मिक्सचर ऑफ स्टेशनरी फेस एंड वाटर। जो स्लरी होती है स्टेशनरी फेस और वाटर का मिक्सचर होता है, उसको डिफरेंट रेशियो में आप प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करने के बाद में आपको टीएलसी प्लेट प्रिपेयर करना है। तो टीएलसी प्लेट आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट 4 मेथड्स इसके लिए यूज होती है। फर्स्ट वन इज पोरिंग टेक्निक। पोरिंग टेक्निक, द स्लरी इज प्रिपेयर्ड एंड जस्ट poured ऑन द ग्लास प्लेट। मतलब इसमें आपको स्लरी को प्रिपेयर करना है और उसको ग्लास प्लेट के ऊपर पोर कर देना है, ठीक है, विच इज मेंटेन ऑन ए लेवल सरफेस, जिसकी आपको एक लेवल सरफेस को मेंटेन करना है। आफ्टर सेटिंग द प्लेट्स इट इज ड्राइड इन ओवन एंड यूज्ड फॉर स्पॉटिंग। तो मेनली लेकिन इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज होता है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ थिकनेस कैन नॉट बी इंश्योर्ड, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्मिटी जो थिकनेस रहती है उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टेक्निक इसमें होती है डिपिंग टेक्निक, ठीक है। डिपिंग टेक्निक में क्या करते हैं, जस्ट 2 प्लेट्स आपको लेना है
और उसको स्लरी में डीप करना है। ठीक है, डीप करने के बाद में आपको उसको सेपरेट करना है आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम स्लरी। ठीक है, एंड लेटर इट शुड बी ड्राइड। ठीक है, तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसमें आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लरी रिक्वायर्ड होती है व्हेन प्रिपेयरिंग फ्यूअर प्लेट्स। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी प्लेट बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको लार्ज क्वांटिटी में स्लरी को प्रिपेयर करना रहता है। Then other technique for preparing TLC plate, this is spraying technique. ठीक है, spraying technique is just resemble like using a perfume spray on your cloth। ठीक है, जैसे कि आप अपने क्लॉथ्स के ऊपर परफ्यूम स्प्रे करते हैं, बस सेम यही टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि जो सस्पेंशन होता है एडजॉर्बेंट का और स्लरी होती है, उसको आपको स्प्रे करना रहता है ग्लॉस प्लेट के ऊपर। ठीक है, बाय यूजिंग ए स्प्रेयर। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि इसमें जो थिकनेस होती है लेयर की, उसको आप मेंटेन यूनिफॉर्मली नहीं कर पाते हैं। देन लास्ट टेक्निक दैट इज ए स्प्रेडिंग। तो स्प्रेडिंग टेक्निक होती है, दिस इज द बेस्ट टेक्निक वेयर ए टीएलसी स्प्रेडर इज यूज्ड। ठीक है, ये स्प्रेडिंग टेक्निक जो होती है सबसे बेस्ट होती है, इसमें टीएलसी स्प्रेडर को यूज करते हैं। ठीक है, जो टीएलसी ग्लास प्लेट स्पेसिफिक डायमेंशन की, अगर आप चाहें तो किसी भी डायमेंशन की ले सकते हैं, चाहे 20x20 हो सकती है, 10x20 हो सकती है, या फिर 5 सेंटीमीटर, किसी की भी आप ले सकते हैं। और जो भी आपका स्लरी आप प्रिपेयर करते हैं, उसको आपको ट्रांसफर करना है जो रिजर्वायर होता है टीएलसी स्प्रेडर का उसमें, और उसकी थिकनेस को आपको एडजस्ट करना है थ्रू नॉब से। ठीक है, नॉब से आप उसकी थिकनेस को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद में जस्ट आपको नॉर्मली थिकनेस चाहे तो 0.25 सेंटीमीटर की समथिंग एनालिटिकल पर्पस में इसको यूज करते हैं। और उसके बाद में स्प्रेडर को आपको जस्ट रोल करना है प्लेट के ऊपर, और उसको अलाउ करना है ड्राई होने के लिए। उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं एक्टिवेशन के लिए। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। जैसे आपकी टीएलसी प्लेट प्रिपेयर होती है, उसके बाद में आपको उसका एक्टिवेशन करना रहता है। एक्टिवेशन ऑफ टीएलसी प्लेट इज नथिंग बट ओनली रिमूविंग वाटर एंड मॉइस्चर। ठीक है, जो आपका टीएलसी प्लेट रहती है उसके अंदर जो भी वाटर या मॉइस्चर रहता है, उसको जस्ट रिमूव करने के लिए हमको टीएलसी प्लेट्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए आप इसको हॉट एयर ओवन में हाई टेम्परेचर पे 20 से लेकर 25 मिनट्स के लिए आप उसको रखेंगे, तो उसके अंदर से जो भी मॉइस्चर या फिर जो भी वाटर से रिमूव हो जाएगा। दिस इज जस्ट एक्टिवेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। नेक्स्ट वन इज मोबाइल फेस, द मेन थिंग्स फॉर टीएलसी क्रोमेटोग्राफी दैट इज मोबाइल फेस। ठीक है, तो मोबाइल फेस इट इज ए डेवलपिंग लिक्विड। ठीक है, मोबाइल फेस जो होता है एक डेवलपिंग लिक्विड्स होता है, जो कि ट्रेवल करता है स्टेशनरी फेस में ऊपर की तरफ। उसके साथ 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 में वो सैंपल को भी कैरी करता है। तो सिलेक्शन, जो मोबाइल का सिलेक्शन होता है वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड। आप कौन से सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, उसके बाद में नेचर ऑफ स्टेशनरी फेस। ठीक है, जो स्टेशनरी फेस आप यूज कर रहे हैं उसका क्या नेचर है। देन उसके अलावा आप कौन से मोड्स को ऑफ क्रोमेटोग्राफी को यूज कर रहे हैं, नॉर्मल फेस से यूज कर रहे हैं या रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है, जो मोबाइल फेस आप यूज कर रहे हैं वो हाई प्योरिटी का होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू पोलरिटी आप मोबाइल फेस को सिलेक्ट करते हैं। मतलब आप नॉन पोलर से लेके पोलर तक आप मोबाइल फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पोलरिटी के हिसाब से देखें तो पेट ईथर है, बेंजीन है, इथाइल एसीटेट है, एसीटोन है, अल्कोहल से, वाटर से, इस टाइप से अकॉर्डिंग टू पोलरिटी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में है स्पॉटिंग। ठीक है, जस्ट आपकी टीएलसी प्लेट प्रिपेयर हो जाएगी, आपने मोबाइल फेस को सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है स्पॉटिंग। ठीक है, तो स्पॉटिंग करने के लिए जस्ट आपको 1% सॉल्यूशन सैंपल और स्टैंडर्ड्स का लेना है, और उसको स्पॉट करना है टीएलसी प्लेट के ऊपर बाय यूजिंग कैपिलरी ट्यूब और माइक्रो पिपेट। ठीक है, द स्पॉट शुड बी केप्ट एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर अबव द बेस ऑफ प्लेट। ठीक है, जो आप स्पॉट रखेंगे उसको आपको प्लेट का जो बेस रहेगा उससे 2 सेंटीमीटर अबव रखना है, ताकि जो आपका स्पॉट है वो डेवलपिंग चेम्बर में मोबाइल फेस में डिसॉल्व ना हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में है डेवलपिंग चेम्बर। ठीक है, डेवलपिंग चेम्बर मीन्स इट इज इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टीएलसी प्लेट रन इन मोबाइल फेस। जो टीएलसी प्लेट है उसको मोबाइल फेस में रन कराने के लिए इसका मेनली यूज होता है। आफ्टर द मोबाइल फेस इज poured into the chamber, it is kept close with lift। ठीक है, जैसे ही आप मोबाइल फेस को टीएलसी चेम्बर में
ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में आपको इसको लीड से क्लोज करना है, ताकि जो एटमॉस्फेयर है, जो टीएलसी चेम्बर है, उसका एटमॉस्फेयर पूरा सॉल्वेंट के साथ में सेचुरेट हो। सेचुरेट करना एटमॉस्फेयर के साथ में इसलिए जरूरी है, अगर वो पूरा एटमॉस्फेयर सेचुरेट नहीं होगा तो उसमें एज इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, एज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो मिडिल होता है टीएलसी प्लेट का, वहां पर सॉल्वेंट का रन ज्यादा होगा और जो साइड से वहां पर उसका रन कम होगा। तो इस एज इफेक्ट को दूर करने के लिए पहले हमको टीएलसी चेम्बर या डेवलपिंग चेम्बर को सेचुरेट करना जरूरी रहता है। नेक्स्ट उसके बाद में है डेवलपमेंट ऑफ टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट से उसको डेवलपमेंट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है। फर्स्ट होती है वन डायमेंशनल डेवलपमेंट। तो वन डायमेंशनल डेवलपमेंट में एज ए कन्वेंशनल टाइप होता है जस्ट, इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो अगेंस्ट ग्रेविटी के फ्लो होता है। ठीक है, इसमें आप जो स्पॉट्स आर केप्ट एट द बॉटम पोर्शन ऑफ टीएलसी एंड कीप्ड इन अ चेंबर विद मोबाइल फेज सॉल्वेंट एट द बॉटम। ठीक है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी के ये रन होगा। और उसके अलावा सेकंड मेथड होती है टू डायमेंशनल टेक्निक। ठीक है, इस टेक्निक में क्या करेंगे, फर्स्ट आप जो आपका प्लेट है उसको वन डायरेक्शन में आपको डेवलप करना है। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ वन साइड यू कैन सिलेक्ट सेकंड डायरेक्शन। ठीक है, और सेकंड डायरेक्शन में आप जो सॉल्वेंट्स हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं या सेम सॉल्वेंट में भी आप उसको रन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डिटेक्टिंग एजेंट। जो फाइनल स्टेप्स होती है, आपकी टीएलसी प्लेट रन हो गई है, उसके बाद में आपको जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स आते हैं उनको डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम जो विजुअल स्पॉट्स होते हैं उसको आप विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट कुछ कलरलेस स्पॉट्स होते हैं, तो उन कलरलेस स्पॉट्स को आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए टू टाइप्स ऑफ मेथड्स होती है। पहली होती है नॉन स्पेसिफिक मेथड। इन नॉन स्पेसिफिक मेथड वेयर द नंबर ऑफ स्पॉट्स कैन बी डिटेक्टेड बट नॉट एग्जैक्ट नेचर ऑफ कंपाउंड। नॉन स्पेसिफिक मेथड में नंबर ऑफ स्पॉट्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट नेचर होता है कंपाउंड का आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। There are some example for non-specific method like iodine chamber method. आयोडीन चेम्बर मेथड्स को आप इसमें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यूवी चेम्बर फॉर फ्लोरोसेंट्स कंपाउंड्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक मेथड्स में आएगा। अदरवाइज यू कैन आल्सो यूज स्पेसिफिक मेथड्स। ठीक है, स्पेसिफिक मेथड्स में सम स्प्रे एजेंट और डिटेक्टिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू विजुअलाइज द कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन are used for phenolic compounds and tannins. Ninhydrin solution is used for amino acids. Dragon drop reagent used for alkaloids. ठीक है, otherwise dinitrobenzoic acids are used for cardiac glycosides. Okay, so this is all about thin layer chromatography. What are its principle and its basic requirements in practical manuals. Okay, in other class, next class, we will discuss about application of thin layer chromatography in identification and separation of different herbal compounds. Okay, thank you.